Today's agenda is QPSK, right? And I think you all are aware about the BPSK, QPSK, ASK, BPFSK. But yeah, throughout my lectures, you have gone through the mathematical analysis, right? Mathematical modeling is really important. And once you are able to do the mathematical modeling, you can do anything, right? Because mathematical output of the mathematical equations is directly related with your simulation approach or any reflections, and through mathematical modeling you can also consider different type of case studies for different practical approach. Okay, so now I'm going to share my presentations, and then we will start one by one. In last class, I was given one task to you regarding um, uh, BFSK generation and detections, right? So hopefully you have already gone through the generation and detection of BFSK. And today I will also ask I think any one of you please give the headlines how you can make generation and detection of BFSK signal. Okay, so no issue since the time is already 10:45. So first I will cover my agenda, then I will discuss with you. And as you know, you have any problem, any concept gap, please let me know. So till now, ASK, BFSK, and BPSK, we all are transmitted the signal as a one bit informations. But in QPSK, the name itself, quadrature phase shifting keying, here there's just totally different concept as compared to till we have studied, because in quadrature phase shifting keying at the uh, uh, place of one bit we will transmit more than one bit at the same time, right? So one bit time period is related to TB, right? But if the time period, if you will transmit two bit at the same time, so TB is converted into TS, symbol time, right? Symbol time. So symbol time, either you can send two bits, either can you send four bits, either can you send eight bits on two to power something. Okay, so this is QPSK is really important for your future research also, because if you know the basic concept of the QPSK, then you can go up to M array, and any type of modulation scheme you can able to derive. Okay, so what are the basic concept related to QPSK? So in all previous scheme, ASK, BFSK, BPSK, we are sending one bit in a time period TB, right? सो आपने पहले से शुरू से देखा होगा कि सब टाइम एवरी टाइम्स आई वाज रिप्रेजेंटेड वन जाएगा या जीरो जाएगा, राइट? जीरो जाएगा, वन जाएगा, सो and with the time period TB. Now the time came. Now we will transmit two bits at the same time. So the first question is why we want to send the two bits at the same time. So कौन बताना चाहेगा मुझे कि why we are going to transmit one bit के बदले में two bit भेजना है हमें? So Sadhvi, could you please tell me? Charitra has not joined the today class. Okay, no issue. Sadhvi, please tell me why we are looking for the two bit at the same time. Why not? सर एक्चुअली जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो हमारा मेन पर्पस होता है कि बैंडविड्थ कम से कम यूज हो. तो अगर हम QPSK में अगर हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं और अगर हम बैंडविड्थ सेम है तो बिकॉज जो PSK और QPSK का बैंडविड्थ सेम होता है, तो अगर हम 2 बिट्स भेज रहे हैं और अगर वो बैंडविड्थ कम यूज कर रहा है तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू. सो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के कारण, राइट? बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, राइट? यस सर. ओके, एनी अदर वन वांट टू कमेंट कि QPSK क्यों यूज करते हैं, सॉरी 2 बिट क्यों भेजना चाह रहे हैं, 4 बिट क्यों भेजना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1 बिट? बिकॉज 1 बिट इज वेरी गुड ना, फॉर एनालिसिस पर्पस 1 बिट इज वेरी गुड, बट वी आर मूविंग फ्रॉम 2 बिट्स 4 बिट 8 बिट्स, ऐसा क्यों जाना चाहते हैं?
Sadat, Riyaj. Sadat, please unmute. Yes, sir. Why we are looking for the now 2-bit, 4-bit, 8-bit, 16-bit, 256-bit, 512-bit? सर एक तो एनक्रिप्शन हमारी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है एंड वी कैन ट्रांसफर मोर डेटा एफिशिएंटली। ओके, इंक्रिप्शन से कैसे रिलेशन है इसका? सर जैसे जैसे बिट्स इंक्रीज होती जाएंगी तो हम एनक्रिप्शन जो है वो भी उतनी बिट्स की स्ट्रांग कर सकते हैं। ओके, ठीक है। और एनीवन? जसप्रीत, why you are looking for the more bit as compared to 1 bit? नॉइस भी कम हो सकता है इससे, नॉइस डिस्टॉर्शन भी कम। अच्छा, मैंने नॉइज के बारे में क्या पढ़ाया था कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ बीट भेजेंगे उतना ज्यादा नॉइज होगा कि कम होगा? थ्रेशोल्ड बीट की कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी, क्या बताया था आपको? जब 2 बीट भेज रहे हो, जब 4 बीट भेजोगे, जब 8 बीट भेजोगे, तो एक ही प्रॉब्लम है कि बिट का जो थ्रेशोल्ड है 2 बिट के बीच में, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा कि ज्यादा होता जाएगा? क्या होता जाएगा बेटू? ज्यादा हो जाएगा, कम होता जाएगा? पढ़ाया था मैंने कि आप यदि बेस स्टेशन आपको मोबाइल, आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे हैं, तो यदि आप बहुत नजदीक हैं तो कौन सा मॉड्यूलेशन लेते थे? क्यूपीएसके वाला, याद है? क्वैम वाला बीच में है तो क्यूपीएस के, या बहुत दूर है तो बीपीएस के। यही तो कॉन्सेप्ट था ना कि थ्रेशोल्ड, उसके बीच में थ्रेशोल्ड जो है वैल्यू वो कम होता जाएगा। यस, ऐसा नहीं बोलिए, जो पढ़ा दिया हो तो एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट, इन ऑल प्रीवियस स्कीम्स ASK, BFSK and BPSK, we are sending 1 bit in a time period TB, but QPSK or up to the QAM, now we are sending more than 1 bit, so that bandwidth utilization अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा बोला किसी ने, bandwidth utilization अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा मैं बताऊंगा अभी, राइट? And yes, as far as the encryption concern, security concern, वो भी अच्छा हो सकता है, बट दैट इज नो डिफरेंट एस्पेक्ट भी है उसका, उसके प्रॉब्लम भी है सिक्योरिटी में, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज सो फ्रॉम लोअर मॉड्यूलेशन से हायर स्कीम का ये एडवांटेज है कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अच्छा है, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा भेज पाएंगे, तो बैंडविड्थ जो है ज्यादा ज्यादा यूटिलाइज हो पाएगा। ओके, वेरी गुड। सो सेकंड, राइट डाउन सेकंड पॉइंट, इन QPSK एज विथ बाइनरी PSK, BPSK के बदला में QPSK आया। BPSK में 1 0 भेजते थे विद द फेज, नाउ QPSK में 2 bit at the same time भेजेंगे with a different phase, right? So write down, in QPSK as with binary PSK, in QPSK as with binary PSK, information carried by transmitted signal is, information carried by transmitted signal is content in the phase, content in the phase. In particular, the phase of the carrier, in particular, the phase of the carrier takes and one of the 4 equally spaced value, क्वाड्रेचर है इसलिए 4, carrier takes and one of 4 equally spaced value। तो पहला याद रखना, हमेशा जो असाइन करते हैं पहला बिट, वो एक क्वाड्रेचर का खींचोगे तो पहला बिट भेजते हैं π/4 पे। π/4 में आप जोड़ दो π/2, तो कितना आएगा? π/4 में π/2 जोड़ दो, π/4 में प्लस π/2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जसप्रीत, क्या आएगा π/4 में प्लस π/2 जोड़ेंगे तो? सर 3π/4। फिर उसमें π/2 जोड़ेंगे तो 5π/4। ओके, दैट मीन्स एक एक बीट एक दूसरे से शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री के साथ, राइट? सो लिख लीजिए 4 इक्वली स्पेस्ड वैल्यू सच एज π/4, 3π/4, 3π/4 में फिर से π/2 जोड़ दीजिए तो 5π/4 एंड 7π/4। ओके, ये है इक्वली स्पेस्ड रिप्रेजेंटेशन। ये है, जब मैं कॉन्स्टेलेशन डायग्राम बताऊंगा तो अलग अच्छे से और बताऊंगा, बट अभी आप इसको ये लिख लीजिए कि π/4, 3π/4, π/4, 5π/4 एंड 7π/4।
एंड नाउ द ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या होगा? ट्रांसमिटेड सिग्नल क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? अपना ग्राम स्मिथ प्रोसीजर्स लेंगे तो अपना इक्वेशन लिख लो. सो राइट डाउन. तो ट्रांसमिटेड सिग्नल इज SIT इक्वल टू क्या होता था? फॉर्मूला क्या होता था? स्क्वायर रूट ऑफ 2 EB/TB cos 2 pi FT होता था. याद है आप लोग को? Yes, sir. बट यहाँ पे जनरल इक्वेशन है QPSK का. सो लिख लीजिए SIT इक्वल टू 2ES/TS cos 2 pi FCT प्लस 2I-1 into pi/4 into pi/4 into pi/4 where I is 1 2 3 4 where I is 1 2 3 4 QPSK है इसलिए 1 2 3 4. नाउ जहां पे EB हुआ करता था, बीट एनर्जी हुआ करता था, वहां पे अब आ गया है नाउ रिप्लेस EB एज अ ES सिंबल एनर्जी. एंड वन सिंबल एनर्जी वैल्यू जो है ES इक्वल टू 2 EB ट्वाइस ऑफ EB. बिकॉज हम कितना बिट भेज रहे हैं एक टाइम में? 2 बिट 2 EB. एंड TS इज सिंबल पीरियड इक्वल टू ट्वाइस ऑफ EB. राइट. तो पहले हम TB रहता था, EB रहता, TB हुआ करता था तो 0 1 भेजते थे. अब और TB रहता था तो 0 1 भेजा करते थे. बट अब ES आ गया तो हम 2 बिट एक साथ भेजेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे भेज सकते हैं. क्यों भेज सकते हैं? फिर से बता रहा हूं. प्लीज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. नाउ एट द सेम टाइम वी कैन सेंड 2 बिट्स एट द सेम टाइम. यदि मोर देन 1 बिट को भेजेंगे तो उसको बोलते हैं सिंबल एनर्जी या सिंबल टाइम. टाइम लेंगे तो सिंबल टाइम और एनर्जी लेंगे तो सिंबल एनर्जी. सिंबल एनर्जी नथिंग बट द इफ द QPSK कंसर्न ट्वाइस ऑफ बीट एनर्जी एंड TS इक्वल टू नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ बीट पीरियड TB. ओके. सो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट. सो मैं अब जिससे बोलूंगा वो बताएगा मुझे. तो प्लीज इतका आपने इक्वेशन लिखा, जनरल इक्वेशन लिखा. CS 2ES by PS cos 2 pi. ये लिखा ना आपने? ये लिखा ना? Yes. नाउ S1T क्या होगा बेटू? बताइए. S1T का वैल्यू बताइए मुझे. S1T सब कोई निकाल के रखिए, मैं किसी से पूछ लूंगा. S1T, S2T, S3T, S4T. बंसिका इससे पहले क्या आता था? कितने इक्वेशन बनते थे हमारे? Sir, 2. अब कितने बन रहेंगे? 4. 4. सो इतका आप मुझे बताइए S1T क्या होगा? पहले S1T बता. So 2ES by PS cos 2 pi. कॉस ब्रैकेट में 2 पाई. वो तो बोलो नहीं समझ में आया मुझे. So then whole bracket. So then whole bracket and then pi by 4. 2 पाई. फिर से बताओ सबको बताओ. स्क्वायर रूट ऑफ 2 ES/TS cos होल ब्रैकेट क्या? Yes, 2 pi. हाँ. Plus pi by 4. नहीं. 2 पाई FCT है ना बेटा? क्या बात कर रही हो? 2 पाई cos 2 पाई FCT है ना बेटू? Yes. यहां देखो इक्वेशन मैंने शेयर किया हुआ है ना स्क्रीन. स्क्रीन दिख रहा है मेरा? No, sir. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? क्या बात कर रहे हो? आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कैसे बात कर रहे हो बेटा? तुमने फिर इक्वेशन कैसे लिखा बिना शेयर किए हुए? सर आपने डिक्टेट किया था ना? नहीं बेटा, दिस इज नॉट वे. व्हाई यू आर नॉट, माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू? आप किससे, मोबाइल से यूज कर रहे हो? यस सर. फिर भी मोबाइल से भी तो स्क्रीन तो दिख रहा होगा ना बेटू. और सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या मुझे मेरा? जी सर दिख रहा है. बिना स्क्रीन देखे हुए आप कैसे लिख सकते हैं बेटू? ये ऐसे थोड़ी पढ़ाई होती है. आप एक बार वो करो,
स्क्रीन क्यों नहीं दिख पा रहे हो आप? स्क्रीन पे पिन करो ना, मैं तो स्क्रीन शेयर Yes. किया हुआ हूँ बेटू, तो कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। देखो आया, स्क्रीन क्यों नहीं दिख Yes, रहा है? sir. आ रहा है Yes, sir. स्क्रीन? Yes, sir. हाँ, इतिका बोल रही हो? Yes, sir. Visible है। हाँ, अब चलो बताओ। नाउ SIT इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ES बाई TS cos 2 pi FCT प्लस 2I माइनस 1 इंटू पाई बाई 4 है बेटू, Yes, sir. वेर I इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, Yes, sir. मैं I इक्वल टू 1 पुट अप बोला हूं करने के लिए, तो S1T क्या हो जाएगा बेटू? So 1 second. अब कैलकुलेट कीजिए। और आप लोग को एक होमवर्क है, मुझे आज शाम के 6 बजे तक मैंने जितना भी पढ़ाए हैं वो आपका मैं असाइनमेंट कंसिडर करूंगा। फर्स्ट असाइनमेंट जितने मैंने पढ़ाए हैं, मुझे शाम के 6 बजे तक टिल इवनिंग 6 PM काइंडली सेंड योर नोट्स। जो मैंने पढ़ाए हैं वो नोट्स आपको स्कैन करके फोटो खींच के मुझे भेजने हैं इन द PDF फाइल at my mail ID. After 6 PM I will not consider your assignment. आप सबको कंसिडर बता दीजिएगा, after 6 PM I will not consider your assignment. The first assignment is kindly send PDF file or picture files of my entire class notes. Those syllabus have already covered by me by 6 PM today. Otherwise I will not consider your assignment. Okay, so please kindly circulate this message in your group, except 2 students, roll number 19 and 20. So under root 2 ES by TS cos bracket 2 pi FET plus pi by 4. FCT है बेटा, कैरियर है वो, FCT। FC Okay. मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? Okay. Yes, sir. प्लस क्या? पाई बाई 4. 4। S2T roll number 19 has joined the class. So under root 2 ES by TS cos bracket 2 pi FCT plus 3 pi by 4. तो S3T क्या हो जाएगा फिर? कितने T S3T आएंगे? S1T आ गया, S2T आ गया, और क्या क्या आएंगे? So S3T And S4T and so इतना ही है। वेरी गुड। सो S1T, S2T, S3T एंड S4T। तो जल्दी से बता दीजिए सबको, S3T क्या आएगा? So S3T under root 2 ES by TS cos bracket 2 pi FCT plus 5 pi by 4. ओके, तो 4 S4T under root 2 ES by TS cos bracket 2 pi FCT plus 7 pi by 4. ओके, सो वेरी गुड। इतका म्यूट कर लो। सो दिस इज द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, जब हम ड्राइव करेंगे तो यस राइट, जैसे इतका ने बताया S1T आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2ES by TS cos 2 pi FCT plus pi by 4। S2T आ गया, S3T आ गया, S4T आ गया। फरहा सही है यहां तक? फरहा Yes, फरहा sir. ऑनलाइन बेटू? Yes, sir. सही है यहां तक? चले आगे। Yes, sir. नाउ इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं बेटू? cos 2 pi FCT plus pi by 4 है, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं cos A इंटू cos B। कर सकता हूं बेटू? Yes, sir. कर सकते हैं। सो सब हम फॉर्मूला जानते हैं cos A प्लस B का, तो राइट लिख लीजिए। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए। cos A प्लस B इक्वल टू होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। एंड वी ऑल्सो नो दैट cos 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 डिग्री, और उसका वैल्यू होता है 1/√2। ये मालूम है सबको? Yes, sir. cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा, एंड sin पाई माइनस थीटा होता है प्लस sin थीटा। ये भी मालूम है, ऑल प्लस साइन प्लस n प्लस cos प्लस, पता है ना ये सब चीजें? तो लिख लीजिए कि
इस यहाँ पे पाई माइनस थीटा वाले एरिया में आपका कॉस जो है माइनस होता है और साइन जो होता है प्लस होता है, वो मैंने लिख दिया। सबके लिए बताया है वो मैं, क्योंकि 99% तो सब जानते हैं, बट हमारा काम है एज अ टीचर की सबको एक बार रिवाइज करना, जिससे कि आप आगे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करें। सो नाउ पुट दिस इक्वेशंस इनटू हियर एंड नाउ मुझे S1t का वैल्यू जिससे मैं पूछूंगा वो बताओगे। So S1t after the break, on the basis of this formula, just break this and tell me what is the value of S1t, जिसे मैं बोलूंगा वो बोलेगा। सबा S1t क्या आया बेटा? S1t तुहा आपको बेटा दिख रहा है? आप स्क्रीन दिख रहा था बेटू? तुहा मोहम्मद। ओके, सो S1t नासित अनम्यूट करो बेटू। नासित प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? साइमा रशीद प्लीज अनम्यूट, रोल नंबर 11। साइमा। यस सर। हाँ बेटा बताइए S1t क्या आएगा वैल्यू? सर कर रही हूँ, एक सेकंड। हाँ करिए। सर म्यूट कर लीजिए, इतिका म्यूट कर लो बेटू। सर अंडर रूट ऑफ ES by TS। वेरी सर गुड। क्योंकि साइन 2 पाई तो 0 हो हाँ नहीं, जाएगा। आप बताइए फिर मैं बताऊंगा। आप S1t का पूरा बताइए फॉर्म क्या आएगा? सर अंडर रूट ऑफ 2ES by TS into 1 by under root 2। सर वही ES अंडर रूट ऑफ ES by TS। अच्छा ऐसा, ठीक है। और मैं पूछता हूँ किसी से। अंकिता। Yes, हाँ क्या yes. आएगा वैल्यू बेटा S1t का वैल्यू? सर S1t का वैल्यू अंडर रूट ऑफ EB by 2। EB आ गया? सर ES by 2। ES by 2। ओके, फिर अंडर रूट 2 by TS cos 2 pi FCT माइनस अंडर रूट 2 by TS sin 2 pi FCT। नहीं तोड़ना है ना बेटू, फिर नहीं तो फिर क्या मतलब है इसका? सर वो अंडर रूट 2 by TB cos 2 pi FCT की जगह हम 5-1t यूज करेंगे। मतलब ठीक है। नीना वर्मा, रोल नंबर 8। नीना। यस सर। हाँ क्या आया S1t? सर कैलकुलेट कर रही थी। बढ़िया। वंशिका कर लिया कैलकुलेट? यस सर। क्या आया वैल्यू? अंडर रूट ES by TS cos 2 pi FCT minus sin 2 pi FCT। तो प्लीज कैलकुलेट कीजिए सब कोई, और तब तक मैं आपको बता देता हूं कि जब आप इस इक्वेशन को जो कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये S1t इक्वल टू आएगा, जब आप इसको अच्छे से ब्रेक करके रखेंगे तो आएगा ES by TS cos 2 pi FCT माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ES by TS sin 2 pi FCT। देख लीजिए आप लोग सबको अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा S2t का वैल्यू आएगा माइनस ES by TS cos 2 pi FCT माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ES by TS sin 2 pi FCT। वंशिका का थोड़ा सही था, बाद में शायद इसने ये ब्रेक नहीं किया था। S3t का आएगा वैल्यू? यस मैंने वो अंडर रूट वो तो S3t का वैल्यू आएगा माइनस रूट ES by TS cos 2 pi FCT प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ES by TS sin 2 pi FCT। और S4t का वैल्यू आएगा प्लस रूट ES by TS cos 2 pi FCT प्लस रूट ES by TS sin 2 pi FCT। साध्वी अनम्यूट करो, साध्वी। यस सर।
बेटा कैलकुलेट करो तो ये आ रहा है क्या, देखो। यस सर, निकाल रही हूँ। हाँ निकालो पहले, एंड देन वी विल यस सर, यही आ रहा है। क्योंकि सब में 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब में π/4 आएगा फंक्शन, है ना। यस तो √2 ES वाला जो है √2 नीचे बाय 1/√2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये सही होगा, ऐसा ही रहेगा। बंसिका ये सही है? यस सर। अंकिता किया सॉल्व? यस सर। सदत? सदत रियाज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट करो बेटा। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। इतका आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? Yes, sir, visible. तो so now you are able to calculate S1T, S2T, S3T and S4T, and the values is like equation 4, 5, 6, 7 and 8, right? Yes, sir. ऐसा ही आएगा कि अलग आएगा, बताओ। is okay? Yes, sir. कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, Two राइट? years. Yes, So okay, sir. now S1T, now equation from 5, 6, 7, 8, प्लीज इक्वेशन का नाम भी लिख लीजिएगा बेटू, है ना। आफ्टर दैट ओके, तो हमारे पास ये सारे इक्वेशन आ गए। अब हम चलते हैं आगे। नाउ एक चीज आपको सबको बता देता हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि 1 बिट का चेंज आए किसी भी सिस्टम में बेटू, जब 1 बिट का चेंज आए और जब 2 बिट का चेंज आएगा तो क्या होगा, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो मैं एक कंसेप्ट लिखाता हूं, लिख लेना, बॉक्स में डाल लेना ये कंसेप्ट। इफ इन फेज है, if in phase, then always 1 will be transmitted, please write down. If in phase, then 1 will be transmitted. If out of phase 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो तो 0 will be transmitted, प्लीज देख लीजिए आप लोग, प्लीज अच्छे से पढ़े लिख लीजिए। इफ इन फेज है तो इन फेज then 1 will be transmitted, 1 will be transmitted, and 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो तो 0 will be transmitted। पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना। If in phase 1 will be transmitted, if out of phase या 180 आउट ऑफ फेज मतलब क्या, कि आपके पूरे रिवर्ट हो तो 0 will be transmitted। पहले तो ये लिख लीजिए। ओके, सो आउट ऑफ फेज मतलब पूरा, यदि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में हूं तो पूरे निगेटिव डायरेक्शन में। तो S12 क्या होगा, यहां से S1T क्या होगा, ध्यान से देखना। इतना यू हैव ज्वाइन द फर्स्ट क्लास, तो मैं आप को रेफरेंस लेके चलता हूं। सो हियर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन होता है इसका? इफ देयर इज नो साइन, देन व्हिच साइन? इफ देयर इज नो साइन इज गिवन, देन व्हिच साइन विल बी कंसीडर्ड? Positive. पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या है? Negative. नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइन इज इन फेज एंड माइनस नेगेटिव साइन इज आउट ऑफ फेज। मानते हो इस बात को? अंडरस्टूड? Yes. Yes. ये दिस इज द जनरल कंसेप्ट ना। इफ इन फेज पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी आउट ऑफ फेज है, Out of phase. Yes. तो इन फेज किस वैल्यू से मैं बोला हूं रिप्रेजेंट करने के लिए इन फेज को? हाउ वी कैन प्रेजेंट इन फेज? 1 या 0? In phase 1. 1। तो यहां पे लिख लीजिए S1T, लिखते जाइए S1T इज इक्वल टू 1, और यहां पे क्या आ जाएगा बेटू? माइनस ES बाई TS है, तो क्या लिखूंगा मैं? So 1। out of phase. हाँ, तो आउट ऑफ फेज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 0. तो क्या, तो S1T सिग्नल क्या होगा? 1 0 होगा। Yes, sir.
ओके S2T बता दो, जल्दी जल्दी बताते जाओ आप। सबको कंसेप्ट क्लियर है? बहुत बड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, जीरो, तो आप कभी जिंदगी में जीरो थोड़ी वन, बड़ी जीरो, हाँ जीरो, 0 0 राइट। जीरो, थर्ड S3T क्या होगा? जीरो जीरो वन, वन, 0 1। S4T वन वन, वन वन। ठीक है। तो प्लीज, और जैसा इतिका ने बोला है लिखते जाइए। इतिका आप म्यूट कर लीजिए। ओके। नीना वर्मा प्लीज अनम्यूट। यस सर। S1T क्या आएगा? 1 0, क्यों 1 0 क्यों रहेगा बेटू? क्योंकि पॉजिटिव है तो इन फेज है तो हमें 1 कंसीडर करना है। 1 ट्रांसमिटेड होगा, वेरी गुड। और आउट ऑफ फेज है तो 0 उसके बाद S2T 0 0, S3T 0 1, क्यों 0 1? क्योंकि नेगेटिव है तो हमें 0 और कंसीडर S4T करना है। 1 1। तो जल्दी भर याद रहेगा ये कंसेप्ट, ठीक है। यस सर। So now through my I have given your mathematical concept and relations. If in phase 1 out of phase 0, उसके बेसिस पे मैंने, आप बोलो कि 1 0 0 0 0 1 1 1 कैसे ले आया, ये बहुत बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता है, और हम सीधे बस लिख देते हैं 1 0 0 0 0 1 1 1। वाई S1T S2T S2, और ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं ना, किसी गेट एग्जाम में ऊपर नीचे कर देगा, इक्वेशन बदल देगा। आप तो रट्टा मार के गए हैं, हम तो 1 0 0 0 1 0 1 1 1 हो गया पूरा। हमें आप बोलेगा नहीं मैं तो सब सही करके आया हूँ। अरे कैसे सर किया? आप देखो तो इक्वेशन क्या दिया हुआ था, कहीं S4T को S1T पे तो रिप्लेस नहीं कर दिया था। तो हम हमेशा यही लेके चलते हैं कि अच्छा है, 4 बोला है तो ठीक है ऐसे ले लेते हैं 1 0 0 1 या 0 ऐसे स्टार्ट करते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। कभी भी आप पढ़ाई करते होगे कभी भी तो हम डिजिटल में हम ऐसे लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे लेते हैं ना बेटू, सबको याद है? याद है ना सबको? यस सर। 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे लेते हैं, दैट इज सीक्वेंस। बट नहीं, जैसा इक्वेशन हो उस हिसाब से आप पुट करें। नाउ दूसरा कंसेप्ट ध्यान से देखना आप। तुहा अनम्यूट करो बेटू। साइमा अनम्यूट। यस सर। अब ध्यान से देखो साइमा, यस सर। यहाँ पे बेटू है 1 0 और यहाँ पे Yes, आ गया sir. 0 0, ठीक है ना? Yes, 1 sir. 0 से Yes, 0 sir. 0। तो Yes, आपको sir. क्या लगता है कितना बिट चेंज हुआ है 1 0 0 1 में 0 0 में? सर 1 बिट। 1 बिट पक्का? इसमें देखना बेटू 0 0 और 0 1 में कितना बिट चेंज हुआ है? सर 1 बिट। 0 1 1 1 में कितना बिट? 0 सर उसमें भी 1 बिट। 1 बिट। तो याद रखना Yes, sir. 1 बिट चेंज में फेज में जो चेंज आता है वो होता है π/2। तो लिख लीजिए 1 बिट चेंज इक्वल टू π/2 फेज चेंज, 1 बिट चेंज, ठीक है? अंडरस्टूड रहेगा? तो लिख लीजिए। क्यों बोल रहा हूं π/2? तो देखो ध्यान से, इस बीच में 1 बिट, इसके बीच में 1 बिट और इसके बीच में 1 बिट। तो आप देखोगे यदि π/4 में π/2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, फिर π/2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें π/2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। दैट मीन्स पूरे हमेशा के लिए कंसेप्ट ध्यान दे दीजिए कि यदि इफ 1 बिट चेंज देन फेज चेंज इज π/2। नाउ जिसके इतिका अनम्यूट करो। यस सर। नाउ सी 1 0 है यहाँ पे बेटू, यस और सर। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ 0 1 पे। 1 0 से 0 1 कितना बिट चेंज? 2 बिट। क्योंकि 1 भी चेंज हो गया 0 भी चेंज हो गया, राइट? 2 बिट। तो 2 बिट चेंज में कितना बिट एंगल होगा चेंज? तो लिख लो इफ 2 बिट चेंज देन पाई चेंज, मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस लिख लीजिए। इफ 2 बिट चेंज देन फेज इज चेंज बाय पाई 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो बेटू, तो S1T से डायरेक्टली मैं S3T में जा रहा हूं तो एंगल में कितना चेंज होगा बताओ? 1 0 से 0 1 में जा रहा हूं, कितना डिग्री का चेंज? 180। 180। तो π/4 में पाई जोड़ो, कितना आएगा बेटू? π/4 में प्लस पाई जोड़ दो, प्लस पाई।
पाई मतलब 180 जोड़ दो, कितना एंगल आएगा? So 5/4. तो है क्या ये? है 5/4 है? Yes sir. यदि मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो 5/4 होगा। यानी कोई भी 5/4. चीजें कभी भी रिमेम्बर नहीं करना है, जहां से जहां Okay. बोलेगा हम देखेंगे कितना बिट का चेंज हुआ है। यदि 1 बिट का चेंज हुआ है तो 5/2, 2 बिट का चेंज है तो पाई चेंज कर देंगे, अपने आप ये जो है अपना बॉक्स बन जाएगा, बन जाएगा। Yes sir. ओके, अंकिता, यस सर। S22 एंड S42 में कितने बिट का चेंज? S22 एंड S42 सर 2 बिट्स का 2 बिट, तो कितना कितना एंगल का चेंज होगा? पाई फेज शिफ्ट पाई से। तो किस में हम पाई जोड़ेंगे? 3π/4 में पाई जोड़ो, कितना आएगा? 7π/4। है यहाँ पे 7π/4। यस सर। दैट मीन्स हमने जो इक्वेशन, ये बॉक्स जो बनाया है वो एकदम सही है ना? यस सर। जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका अकॉर्डिंग पूरा सही है। अंडरस्टूड? यस सर। अब चलते हैं मेन। इसके बाद सो लिख लीजिए, सबको लिख लीजिए, 00 to 11 2 bit change, then phase change is pi. 10 to 01 2 bit change, then phase change is pi. That means यदि आप इन चारों इक्वेशन को देखेंगे तो आपको रिलेशन दिखेगा S22 इक्वल टू माइनस S40 क्योंकि पाई का चेंज है, और S1t इक्वल टू माइनस S3t होगा। अंकिता? यस सर। यानी S1t और S3t एक दूसरे से रिलेशंस में है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों रिलेशन में है। और S2t एंड S4t आर एक दूसरे के रिलेशन में है। S2 लिख लो सब कोई, S1t इक्वल टू माइनस S3t एंड S22 इक्वल टू माइनस S4t। तो बंसिका, कितने ऑर्थो नॉर्मल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें? चार इक्वेशन है, हमें कितने ऑर्थो नॉर्मल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी? सर 2। क्यों 2? हमारा तो 4 इक्वेशन है, 2 ही क्यों जरूरत पड़ेगी? सर क्योंकि रिलेटेड है ना। Yes. सर 2 दो जो है वो रिलेटेड है। यस, 4 इक्वेशन है बट जो दो इक्वेशन है एक दूसरे से रिलेशन है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मैंने बताया था कि हाउ मेनी ऑर्थोनॉर्मल सिग्नल इज रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी इंडिपेंडेंट इक्वेशन आर देयर, राइट? बताया था। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे S1t एंड S3t आर रिलेटेड, तो एक ऑर्थोनॉर्मल चाहिए, एंड S2t एंड S4t आर रिलेटेड टू ईच अदर। दैट मींस 2 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। So we have required only 2 orthonormal equations. So मैं सबके लिए फिर से बता रहा हूँ, this is really important. Here we have required only 2 independent equations and 2 orthonormal equations is required. Okay, orthonormal functions of equation. So now write down here S2t is equal to minus S4t and S1t is equal to minus S3t. Hence only 2 orthonormal function will be required. Only 2 orthonormal function is required. इसका आपने orthonormal equation सब नहीं पढ़ा है, I will share my channel. आप उसको पढ़े, सारे के इस बीच वीकेंड में आपको टाइम है, 3 दिन में आप 9-10 लेक्चर पढ़ लीजिए। So, is there any WhatsApp group or? हाँ, I will tell Vansika will add you. No issue. Okay. Okay sir. Vansika, kindly add her and roll number 19 also. Okay. Yes sir, yes sir. So hence only 2 orthonormal function will be required to represent these 4 signals. Okay. So these 4 equations के लिए मुझे 2 ही orthonormal function की जरूरत है। उसको 2 orthonormal function है तो हम उसको क्या नाम देंगे? U1t and U2t। पक्का? अंकिता सही है? सबा प्लीज अनम्यूट। सबा प्लीज अनम्यूट। सर सभा के वहाँ पे नेट इशू बहुत ज्यादा है तो इसलिए शिकान। आप कौन बोल रहे हो? यस सर। फरहा? सर वंशिका। अच्छा वंशिका। फरहा अनम्यूट करो। फरहा। यस सर। सो 2 ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन हमें रिक्वायर्ड पड़ेगी। ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? 4 के बदले में सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी। क्यों? एंड दिस आर U1t एंड U2t। पक्का बेटू? यस सर। And that is root 2 by ts cos 2 pi fct and root 2 by ts sin 2 pi fct. Clear? Okay? Yes sir. Now हम चलते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। Now हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ध्यान ये
ये रोल सो राइट डाउन, लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 5, 6, 7 एंड 8, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो ग्राम स्प्लिट प्रोसीजर्स का आपको पता है, यदि 4 इक्वेशंस है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फड़ा S1T इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटू जनरल इक्वेशन में? चलो पहला क्लास में, फर्स्ट या सेकंड क्लास, S1T इक्वल टू S11 U1T प्लस S12 U2T। क्लियर? यस सर, यस सर। S22 इक्वल टू क्या होगा बेटू? S21 U1T प्लस S22 U2T। S3T इक्वल टू नथिंग बट, देखो कुछ नहीं है, 1 1 2 1 3 1 4 1 U1T। फिर S12, यह दूसरा इक्वेशन है इसलिए S22 2, S32 S42 and U2T। So write down from Gram-Schmidt procedures, since we have only 2 independent orthonormal function, so final equation is S1T is equal to S11 U1T plus S12 U2T, S22 is equal to S21 U1T plus S22 U2T, S3T is equal to S31 U1T plus S33 U2T, S4T is equal to S41 U1T plus S42 U2T। फरा आपको क्लियर है बेटू? ये किया करवाया हुआ है मैंने। फरा प्लीज अनम्यूट। नेटवर्क का इशू है क्या? चरित्र अनम्यूट करो, चरित्र। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ थोड़ा लेट ज्वाइन किए हो तुम शायद, है ना? कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम हो तो। ये इक्वेशन लिख सकता हूँ चरित्र, S1T इक्वल टू ये। यस सर, यस सर, लिख सकते हैं। S22 ये, S3T, S4T, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने सेकंड क्लास में। यस सर, यस सर, पढ़ाया था सर। अब हमारे पास इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन का नाम दे दो S प्लीज। इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए S, दे दीजिए सबको। नासित आपका नेट का प्रॉब्लम है आज सर। सर एक बार वो बिट चेंज वाला जो सर आप बता रहे थे वो भी समझा दीजिएगा सर। वो अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है। तुमने तो क्लास शुरू से नहीं किया है ना, मैं बता देता हूँ। जनरल इक्वेशन जो होता है ना, इंस्टेड ऑफ 1 बिट वी आर गोइंग टू ट्रांसमिट 2 बिट एट द सेम टाइम, क्योंकि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है। ठीक है, पहला बात समझ में आया? जितने भी एएसके, बीपीएसके में हम जो भी बिट भेजते थे, 1 बिट भेजते थे एट ए टाइम, 1 0, याद है ये? यस सर, यस सर। क्यूपीएसके में सिंबल आ गया, मतलब मोर देन 1 बिट, क्योंकि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अच्छा करना है, अच्छे से यूज करना है, इसलिए हम एक बिट के बजाय 2 बिट भेज रहे हैं एट सेम टाइम, या तो 1 1 0 0 0 1 1 0 ऐसे करके। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपल कि एक इक्वेशन ड्राइव किया कि SIT जो जनरल इक्वेशन था वो हो गया। पहले इक्वेशन क्या होता था? √EB/TB cos 2 pi FCT, याद है बेटू? ये होता था। यस सर। नाउ हमें 4 बिट भेजने के लिए हमने एक इक्वेशन ड्राइव किया, √2ES/TS cos 2 pi FCT प्लस 2i-1 इंटू π/4। तो इसमें चरित्र i इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटू? सर पुट करो, कोई बात नहीं है, थोड़ा मतलब सबको समझ में आना चाहिए, लेट मतलब जो अभी ज्वाइन किया उनको भी समझ में आना चाहिए। सर आ जाएगा सर 2 pi f1t प्लस π/4 आ जाएगा सर। हाँ तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2ES/TS cos 2 pi FCT प्लस π/4 आ जाएगा। यस सर। 2 देंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 - 1 3 π/4 आ जाएगा। यस सर। तो ये ऐसे करके मैंने ये क्वेश्चन ला दिया बेटा, S12 S22 S3T S4T, ये क्वेश्चन आ गया cos 2 pi FCT प्लस π/4। ये आ जाएगा बेटू? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले ये बता दीजिए। यस सर, आ जाएगा? कुछ नहीं है, π/4 3π/4 π5/4 एंड 7π/4। लेकिन ये अभी रटना नहीं माना है, मैंने कहाँ से लाया है बेटू? सिंपल, ये जो इक्वेशन पहले वाला था उससे लाया है बेटू, है ना? जबरदस्ती नहीं करना है ना। यस सर, समझ गया। तो यहाँ सर ये QPSK है ना सर? ये QPSK। हाँ QPSK फेज चेंज वाला है बेटा, फेज शिफ्टिंग किंग। ठीक है, समझ। यस सर, आगे समझ। तो ये फेज में खाली चेंज आएगा, है ना? एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आएगा, तो एम्पलीट्यूड सेम है। और ये मैंने इक्वेशन जनरल रखा है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। इस इक्वेशन में i इक्वल टू 1 2 3 4 पुट कर दिया बस। क्लियर? चरित्र अनम्यूट रो।
यस सर समझ में आ रहा है। हाँ नहीं, सबको समझाना है ना, और भी कोई चीज ने ज्वाइन किया है लेट में, तो π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 ये आ गया बेटू, है ना? ठीक है, क्लियर? नाउ हम जानते हैं बेटू, इक्वेशन जानते हैं, cos a + b क्या होता है? cos a × cos b - sin a × sin b होता है। यस सर। cos 45 डिग्री = sin 45 डिग्री = 1/√2 होता है, ये भी पता है बेटू? यस सर। नाउ cos a × cos b - sin a × sin b, जब इसको तोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये जो s1t है वो वैल्यू आ जाएगा es/ts cos 2πfct - es/ts sin 2πfct। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जब तोड़ोगे तो ये जब टूट के जाएगा तो सब में π/4 आएगा, π/4 जो होता है 1/√2 होता है, तो कैंसिल कैंसिल, है ना? और एक में एक वैल्यू क्या आएगा ये, अब हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो सबको समझना है, ये वैल्यू आएगा es/ts, नहीं कुछ है मतलब क्या होता है? पॉजिटिव साइन होता है, और माइनस मतलब ये इन आउट ऑफ फेज, पॉजिटिव मतलब इन फेज, ये इन आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज, इन फेज, इन फेज, इन फेज, समझ में आ रहा है चरित? यस सर। तो जो ये तो सर वैसे होगा ना सर, जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। पॉजिटिव है वो इन फेज बोलते हैं, जो नेगेटिव होता है वो आउट ऑफ फेज होता है। सिंपल देखो ना, मैं ऐसे खड़ा हूं और मैं पूरा घूम जाऊंगा तो मैं आउट ऑफ फेज हो जाऊंगा, है ना? तो मैं पॉजिटिव हूं, अभी पूरा घूम जाऊंगा तो नेगेटिव साइड में चला जाऊंगा, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? यस सर। हाँ, सो पॉजिटिव इज 1, नेगेटिव इज 0, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0, नेगेटिव 0, पॉजिटिव इज 1। तो उसका एक कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया सबके लिए, यदि इन फेज हो यानी पॉजिटिव हो तो 1 ट्रांसमिट होगा, यदि आउट ऑफ फेज हो तो 0 ट्रांसमिट होगा। अंडरस्टूड? यस सर। नहीं समझ में आया? यस सर। तो इस इक्वेशन ऐसे देखते हैं ना सर, S1t पहले 10 से स्टार्ट किया तो एक बिट का चेंज आ रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं 10। हाँ नहीं पहले नहीं, एक आगे मत जाओ, पहले मैंने S1t 10 आएगा ऐसा नहीं लिखा मैंने, जो मैंने इक्वेशन थे वो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये मत याद रखना कभी भी लाइफ में, नहीं तो फिर गलत करोगे। हम तो 10 से स्टार्ट करेंगे, क्यों 10 से स्टार्ट करेंगे? हमने तो जो इक्वेशन था वो पुट किया, i = 1, इसलिए इक्वेशन आ गया, ये है ना बेटू? यस सर। मैंने i = 1 पुट कर दिया तो S1t आ गया, ये वाला। जब i = 2 पुट किया तो ये आ गया, S3t पुट किया तो ये आ गया, S4 किया तो ये आ गया, और मैं फॉर्मूला में जब पुट किया तो ये वैल्यू आ गया, ये वाला, है ना बेटू? यस सर। नहीं कुछ है तो पॉजिटिव लिख दो, प्लीज लिख दो पॉजिटिव। मैंने आप बताया कि पॉजिटिव इज इन फेज एंड नेगेटिव इज आउट ऑफ फेज। यदि इन फेज है तो 0 ट्रांसमिटेड, तो क्या होगा? S12 क्या होगा? S22 क्या होगा? S3t क्या होगा? S4t क्या होगा? चलिए तो बताओ, S1t क्या होगा सर? अगर पॉजिटिव गया तो 0 ना सर? नहीं, पॉजिटिव है तो 1 और नेगेटिव है तो 0, तो ये सर 1 0 हो जाएगा सर। हाँ ये हो गया 1 0, और ये वाला सर हो गया 0 0। वेरी गुड। थर्ड ये हो गया सर 0 1। हाँ, डरने का नहीं, जो है वो लिखने का। फोर्थ और ये 1 1 1 हो गया। तो क्या वही लिखा है मैंने कि अगर अलग कुछ लिखा है? देखो ये सर वही लिखा है, वही लिखा है ना। और ये कॉन्सेप्ट पूरे जिंदगी भर के लिए याद रखना, इन फेज 1, आउट ऑफ फेज 0। यस सर। क्लियर? अब यहाँ तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब ध्यान से देखना, तुम 1 0 से 0 0 में जाओगे तो कितना बिट का चेंज हुआ है बेटू? सर π/2 का सर। नहीं ये वो छोड़ो, π/2 में नहीं कर रहा हूं मैं। 1 0 और 0 0 में जा रहे हैं तो कितना बिट का चेंज, ये पूछ रहा हूं मैं। सर 1 बिट का चेंज है सर। 1 बिट का चेंज। 0 0 से 1 0 1 में जाएंगे तो कितना बिट का चेंज? सर 1 बिट का चेंज सर। 0 1 से 1 1 में जाएंगे तो कितना बिट का चेंज? सर 1 बिट का चेंज। तो 1 बिट का चेंज होता है π/2, तो चेंज ऐड कीजिए, π/4 प्लस π/2 कितना बेटू? सर π/4 प्लस π/2। हाँ 3π/4। हाँ मुझे पूछना नहीं है, 3π/4 से 3π/4 यहां से यहां जाने में कितना वैल्यू चेंज, कितना फेज चेंज? सर π/2 सर। जोड़िए, 3π/4 प्लस π/2 कितना बेटू? सर 5π/4। इसमें इस बिट से इस बिट में जाने के लिए कितना बिट का चेंज हुआ है? सर 1 बिट का चेंज हुआ है। 1 बिट का चेंज कितने के बराबर होता है? सर π/2 के बराबर होता है। तो π/4 प्लस π/2 कितना बेटू? सर π/4 प्लस π/2 आ जाएगा 3π/4। नहीं 5π/4 प्लस π/2 ना, 7π/4 आ जाएगा। क्या मैंने सही लिखा है? यस सर सही लिखा है। अब यहाँ जाइए,
आप देखते नहीं समझना, सबको समझाना है तुम्हारे थ्रू ना, इसलिए सबको समझा रहा हूँ। देखो S1T बेटू 10, ठीक है, देखिए बेटू, यस सर। और S3T सर 01 कितने बिट का चेंज? सर 2 बिट का चेंज सर। 2 बिट का चेंज किसके बराबर, कितना फेज के चेंज के बराबर? पाई फेज के बराबर, पाई/2 प्लस पाई/2, पाई के चेंज के बराबर होगा। यस तो सर। यहाँ पे हम जब तो 10 थे तो कितना एंगल था? 10 थे सर, पाई/4 एंगल था। तो पाई/4 में कितना जोड़ेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे 01 पे? पाई/4 में सर पाई जोड़ेंगे तो जोड़िए, पाई/4 प्लस पाई इक्वल टू 5 पाई/4। क्या है ये? है? यस सर है। तो Yes, यानी sir. पूरा सही है। यस सर। होपफुली मैंने पूरे क्लास को तुम्हारे थ्रू सबको समझा दिया, बहुत अच्छे समझा दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। ओके, और कभी भी मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से, प्लीज S1T को 10 प्लीज रिमेंबर मत कीजिएगा, S2 को मत कीजिएगा, S3T को मत रिमेंबर कीजिएगा। जो सर देंगे, या कोई IAS एग्जाम में दो, या गेट के एग्जाम में, या कोई भी जिंदगी में कभी भी आप एज ए इंजीनियर ड्राइव करेंगे, तो प्लीज रिमेंबर नहीं करना है। आपको जो इक्वेशन दिखे वहां पे वहां अप्लाई करना है। क्लियर? यस सर। नाउ जो आपने बोला वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 00 to 11 2 बिट चेंज पाई, 10 to 01 2 बिट चेंज पाई। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ये भी बता दीजिए प्रभु S1T और S3T में क्या रिलेशन है? 1001 तो टोटली आउट ऑफ फेज है ना? यस सर। तो S1T इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस S3T। यस सर। और S2T को लिख सकता हूं माइनस S4T। यस सर। तो यहाँ पे मुझे इंस्टेड ऑफ 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशन, मुझे 2 ही इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिल रहा है, बिकॉज 10 and 01 का जस्ट इन्वर्स कर देंगे तो मुझे S1T S3T मिल जाएगा, और S22 को इन्वर्स कर देंगे तो S4T मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यस सर। मैंने ये भी पढ़ाया हुआ है कि जितने इंडिपेंडेंट इक्वेशन होते हैं उतना ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन बनता है, ये भी पढ़ाया हूं मैं। यस सर। तो यहाँ पे कितने ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन बनेंगे? कितने इंडिपेंडेंट इक्वेशन है यहाँ पे? 4। 2 इंडिपेंडेंट। 2 इंडिपेंडेंट। तो 2 इंडिपेंडेंट है, तो यानी ये रिलेशन है S2T इक्वल टू माइनस S4T, S1T इक्वल टू माइनस S3T। हेंस ओनली 2 ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन विल बी रिक्वायर्ड। मानते हैं इस बात को? यस सर। और 2 ऑर्थोनॉर्मल फंक्शन बनाना है तो एक U1T है और एक U2T है, जो मैंने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 2TS बाई cos 2 pi FCT एंड U2T 2 pi TS sin 2 pi FCT। होगा ये? नहीं होगा? यस सर। सो ये हमारे पास आ गया U1T एंड U2T। क्राम स्मिथ प्रोसीजर से हम जानते हैं S1T इक्वल टू S11 U1T प्लस S12 2 U2T, S22 इक्वल टू क्या होगा? बिना देखे हुए बताओ चरित्र, S22 का वैल्यू क्या होगा? क्लास में करवाया हुआ है मैंने, अब बहुत ईजी है, देखने की जरूरत भी नहीं है। 2 है तो 2 से स्टार्ट होता है, 2 1 2 2, 3 है तो 3 1 2। क्या नाम है इतिका? अनम्यूट करो। यस सर। मैं समझाता हूँ, नहीं परीक्षा पढ़ो, मैं बहुत ट्रिक बताता हूँ। 1 है ना बेटू, तो 1 1। यस सर। 1 1 1 2, देखो 1 1 1 2। 2 है तो बेटू कहां से स्टार्ट होगा? 2 1 2 1 2 2। 3 है तो बेटू कहां से स्टार्ट होगा? 3 1 3 1 3 2। S4 है तो S4 1 S4 2। क्लियर? यस सर। और 1 वाले में U12 लगेगा और 2 वाले में U2T लगेगा। सिंपल, कर सकते हैं? यस सर। तो दिस इज द, इसको लिख लो बेटा, इक्वेशन S, ऑल आर द इक्वेशन S। नाउ वंशिका अनम्यूट करो। यस सर। नाउ कंपेयर इक्वेशन 5 6 7 8 to S, और उसके बाद मुझे S11 S12 ये सब का वैल्यू बताइए। S11 का पहले वैल्यू बताइए आप, क्या होगा? S12 का वैल्यू क्या होगा? S11 का वैल्यू होगा, सारे बताइए मुझे। S12 नहीं, हाँ पहले S11 का वैल्यू बताइए। S11 की वैल्यू होगी, इट विल बी अंडर रूट ES सर 1 मिनट। हाँ कैलकुलेट करो, कोई बात नहीं, सबको कैलकुलेट करना है, नॉट वंशिका ओनली। प्लीज कैलकुलेट S11 S12 S21 S22 S31 S32 S41 S42 प्लीज
इसका आपको भी कैलकुलेट करना है बेटू। So it will be under root ES by 2, S11. एंड S12 बेटू? S12 will be under root minus ES by 2. Under root वेरी minus गुड बेटू, ES by वेरी 2. गुड, वेरी गुड। S21? So S21 will be minus under root ES by 2. और S22? S22 will be minus under root ES by 2. तो जब तुम कंपेयर कर रही हो तो बहुत इजी तरीका है, जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन था ना बेटू, यहाँ ये वाला डायरेक्टली लिख सकते हैं ES by TS, Yes sir. ES by 2, ES by 2, Yes sir. minus ES by 2, ES by 2, minus ES by 2, minus ES by 2, ES by 2, माइनस यहाँ प्लस है ना। तो हमें डायरेक्टली, लेकिन तुमने अच्छा किया, पहले कैलकुलेट करना है फिर कंपेयर करना है। तो फाइनली इसका वैल्यू निकाला कुछ। फरहा आप हो ऑनलाइन? फरहा प्लीज अनम्यूट। सवा तो है नहीं। साइमा है। साइमा बेटा अनम्यूट करो। साइमा। यस सर। बेटा मैंने जो पढ़ाया अभी तक समझ में आया बेटू? यस सर। तो S11 का वैल्यू क्या आएगा बेटू? सर अंडर रूट ऑफ ES by 2। और S12 का? माइनस अंडर रूट ऑफ ES by 2। S21 का? माइनस अंडर रूट ऑफ ES by 2। ओके, सो ये जितने वैल्यू हैं वो सही निकाला मैंने? यस सर। ओके, अब ये वैल्यू निकालने के बाद आप लोग को एक कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाना है। ओके, QPSK का कॉन्स्टलेशन डायग्राम बनाना है। सो प्लीज प्लॉट द कॉन्स्टलेशन डायग्राम, और ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम के बेसिस पे हम एनालिसिस करेंगे इसके यूटिलाइजेशन का, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर का। ओके, सो नो इशू। पहले आप इस सब कॉन्स्टलेशन डायग्राम, एक मैं वर्क दे रहा हूं आप सबको कि इसको कॉन्स्टलेशन डायग्राम बना लें, राइट। ओके, सो होपफुली जो मैंने आज कंसेप्ट बताया वो आपको समझ में आया होगा। एंड I will continue from here only, from the constellation diagram, because already I have given all the concept related to नायरा आपने क्लास कब ज्वाइन किया बेटू? नायरा समझ में आया बेटू? नायरा प्लीज अनम्यूट। नायरा प्लीज अनम्यूट। मुर्तजा वहीद। यस सर। हाँ बेटा, मैंने जो समझाया समझ में आया? सर बीच में से ज्वाइन किया लेक्चर, मुझे पता नहीं था इस टाइम लेक्चर। हाँ, कोई बात नहीं। सो मैंने सबको एक बार वो कर दिया है। 1 मिनट आपके लिए भी रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम, एंड नेक्स्ट टाइम से जो मैं शेड्यूल करूंगा उसी पे रखेंगे, चाहे इवनिंग में हो क्लास या मॉर्निंग में, राइट। नो इशू, सब ऑनलाइन क्लास करने हैं तो आप वो कर सकते हैं, राइट। सो मेरा तुम्हारे लिए रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग कीइंग पढ़ाया। पहले हमने पढ़ा था ASK, BFSK, BPSK और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन स्कीम। उसमें 1 बिट भेजते थे बेटा। तुम अनम्यूट रहना, है ना। सो अब क्या है? हाँ, तो 1 बिट भेजने के कारण क्या होता था, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता था। तो हम बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अच्छे से करने के लिए हमने इंस्टेड ऑफ 1 बिट हम 2 बिट को भेजना स्टार्ट किया। और 2 बिट भेजने के लिए हमें क्या चाहिए था? 2 बिट का ऑपरेशन है तो 2 to the power 2 4 कॉम्बिनेशन होंगे। तो 4 कॉम्बिनेशन इस तरह से होंगे 2 बिट का कि कभी 1 0 जाएगा, कभी 0 1 जाएगा, कभी 1 1 जाएगा, जो भी कॉम्बिनेशन होगा। बट हमें मालूम नहीं है कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। तो हमने एक रेफरेंस ले लिया कि π/4 से कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही है, और लेट अस अज्यूम दैट एक बिट का शिफ्ट जो चेंज हो रहा है वो π/2 से चेंज हो रहा है, 90 डिग्री से चेंज हो रहा है। तो π/2 जोड़ते गया और हमें एक रिप्रेजेंटेशन मिल गया एज अ जनरल। बट बोलना और मैथमेटिकल इज डिफरेंट। तो हमने मैथमेटिकल के लिए एक जनरल इक्वेशन प्लॉट किया, जिस इक्वेशन का नाम था SIT = √2 ES by TS cos 2πfct plus 2i - 1 into π/4, where I = 4 बिट है ना, 4 हमें भेजना पड़ रहा है भी। QPS के क्वाड्रेचर है, चलिए 4 1 2 3 4। तो I = मैं 1 पुट करूंगा तो बेटू क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू? बताना जल्दी से बताना। 2 ES by TS cos 2πfct plus
2i, i की जगह पे 1 पुट करोगे तो बेटा क्या आ जाएगा 2 - 1 इंटू पाई बाई 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटू 2 - 1 कितना होता है? प्लीज अनम्यूट यार, मुझे दूसरा क्लास लेने जाना है। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? तो फिर नो सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है और सबको दिख रही? सर आप लेक्चर शेयर कीजिए सर। हाँ वो तो कर दूंगा बेटा। ये और सबको तो स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर, दिख रही है। यस सर। हाँ, तो नो डाउट जो श्रीनगर में है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैंने बहुत बार रिपीट किया है। आज मतलब आज तो मैं 3 बार रिपीट किया हूँ, जैसे कि क्योंकि सो इन द फ्यूचर बंसिका वी विल नॉट रिशेड्यूल द क्लास, राइट, सो दैट कि मतलब मुझे बार बार वो ना करना पड़े, रिपीट ना करना पड़े एक ही चीज को, है ना? सो नो इशू। anyhow Yes, sir. I will share my so आज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया? जसप्रीत प्लीज लेट मी नो, जो जिन्होंने क्लास अटेंड किया है। यस सर। ओके, जी सर। तो इतका आपका फर्स्ट क्लास था, आपको समझ में आया बेटू जो मैंने बताया? Yes, sir. Okay, so now today anyhow I will share my videos, last 4 videos and today's video also, and यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो आज के क्लास के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, तो मुझे 6 बजे जो मेरा टाइम था 6:30 to 7:30, प्लीज लेट मी नो, आई विल अगेन एक्सप्लेन। सो नो इशू, क्योंकि ये टाइम शेड्यूल के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो आई विल अगेन कम्युनिकेट। सो नो इशू। ओके, सो आज तक हम ये रखते हैं, लिख लीजिए आप लोग। 2 वर्क मैं दिया हूँ। एक जो मैंने अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं सारे लेक्चर्स आपको PDF फाइल में कन्वर्ट करके मुझे आज भेजने हैं, दैट इज योर असाइनमेंट। सेकेंड, ये कॉन्स्टेलेशन डायग्राम बनाना है QPSK का थ्रू जो मैंने बनाया है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है किसी बुक से, फिर तो आप कभी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंड, जनरेशन एंड डिटेक्शंस BFSK का, ये 3 चीजें मैंने दिया है, वो प्लीज करके मुझे कल तक देने हैं। बट असाइनमेंट का जो मैंने बोला है वो आज 6 बजे तक मुझे मिलने चाहिए। तो एंड आज मैं सबको जितने स्टूडेंट हैं सबको मार्क करूंगा प्रेजेंट, बिकॉज 2-3 स्टूडेंट्स आर नॉट हियर ड्यू टू मे बी जो टाइम रिशेड्यूल हुआ है उसके कारण। ओके, सो थैंक यू। नाउ आई एम गोइंग टू लॉग इन फॉर द अदर क्लास। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। I will share my today's lectures as well as last 3 lectures. No issue. Please, जो श्रीनगर में हो, please don't worry. Thank you.